Students, good morning all of you. You are welcome in the class. Myself, Dr. Suman Sharma. I have taught you many lectures on synthetic polymers. The present lecture is in continuation of polyamides. Today we will learn the phenol formaldehyde resin. Okay, so let us start the lecture. First is the history of phenol formaldehyde resin. The first phenolic resins were produced by polycondensation of phenol with aldehyde in 1860. In 1860, von Baer first reported the reaction between phenol and aldehyde. The phenol resin condensation was used industrially in 1902 by Bloomer for production of novels. Right? Then come to the introduction. Phenolic resin is a polycondensation product of phenols and aldehyde, in particular phenol and formaldehydes. Right? Phenolic resin is a heat cured plastic formed from a reaction of carbon based alcohol and a chemical called aldehyde. Formaldehyde is a common raw material for this type of resin. The resin is hard, heat resistant and can be mixed with range of materials for industrial and residual uses. Okay, old phones were made of bakelite, which is a phenolic resin. राइट, अब यदि हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करना चाहें कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या होती है, तो ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से मिलती है। ये प्रक्रिया अम्लीय और क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। यदि एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो इससे हमको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नोवोलक मिलता है, और यदि ये रिएक्शन बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो कंडेंसेशन पर हमको थर्मोप्लास्टिक मटेरियल रिसॉल्व प्राप्त होता है, और ये दोनों ही क्या है, लीनियर पॉलीमर होते हैं। इन पॉलीमर्स को हाई टेम्परेचर पर क्रॉस बंध युक्त त्रिविमीय संरचना में देखते हैं, जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। ओके, और बेकेलाइट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ताप दृढ़ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, और इसका उपयोग हम बिजली के उपकरण, प्लग, स्विच बनाने, रेडियो, टेलीविज़न के बेस बनाने में करते हैं। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल विद एन aldehyde in the presence of an acidic or basic catalyst is used to prepare phenol formaldehyde resins, right? And uses phenolic resins are used in adhesives, coatings and molding compounds. Okay, here is the reaction. Phenol, it reacts with N1 N2 formaldehyde in presence of base and we get this product, right? Heat of reaction is minus 180 calorie per gram. Okay, फिर आता है कि ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स के अंदर फॉलो होती है। 1 स्टेप रेजिन क्या होता है और 2 स्टेप रेजिन्स क्या होते हैं। इन 1 स्टेप रेजिन्स, इन दीज all the necessary reactants like phenols, formaldehydes and catalyst required to produce a thermosetting resin are charged into resin kettle
in the proper proportion and react together. Okay. Second thing is an alkaline catalyst is used. Okay. The resin as charged from the kettle is thermosetting or heat reactive and requires only further heating to complete the reaction to an insoluble state. ओके, तो ये है आपका वन स्टेप रेजिन्स. सेकेंड आता है टू स्टेप रेजिन्स. Only part of the necessary formaldehyde is added in the kettle in making these resins and an acid catalyst is used. यहाँ पर alkaline catalyst था, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम acid catalyst काम में लेते हैं. They are permanently fusible and thermoplastic when discharged from the kettle but react with additional formaldehyde to produce a thermosetting resins. Okay, तो ये है आपका टू स्टेप resins. Come to the next slide. फिर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. Phenolic resins are yellow to brown in color and the coloration can be very intense. ठीक है, ये क्या है, ब्राउन और येलो कलर की होती हैं और इनका जो कलर होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है. Pale phenolic resin become colored immediately after production during storage or processing. Okay, the coloration is less intense only in the case of phenolic resins from para-alkyl substituted phenols. Okay, the viscosity of phenolic resins or their solution is measured at high concentrations, for example in 30 to 80% solution. Okay, cross-linked phenolic resins are hard substances which only have a small fracture strain and cannot be melted. Right? Phenolic resins can be plasticized. Their compatibility with plasticizers can be adjusted by introduction of hydrophilic or hydrophobic groups. Okay, so these are the physical properties of phenol formaldehyde resins. Come to the next slide. फिर आता है कि टू टाइप्स की जो है वो ये रेजिन्स होती हैं. फर्स्ट इज़ नोवेलक एंड सेकंड इज़ रिजॉल. मोलर एक्सिस ऑफ फिनॉल. ठीक है, इसको हम नोवेलक रेजिन्स के अंदर रखते हैं. यूजुअली हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन. ओके, एंड रिक्वायर एन एक्सटर्नल क्यूरिंग एजेंट. इनको हम नोवेलक रेजिन की कैटेगरी में रखते हैं. फिर आती हैं रिजॉल. टिपिकली देयर इज़ अ मोलर एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, सिंगल स्टेज, 6 month शेल्फ लाइफ, डू नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल क्यूरिंग एजेंट्स. ओके, तो ये क्या है आपकी रिजॉल्स रेजिन. अब हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, अब ये आता है, दोनों को हमने इनके डिफरेंसेस बता रखी है. फर्स्ट इज़ नोवेलक एंड सेकंड इज़ रिजॉल. यूजुअली ऑब्टेन इन एसिडिक मीडियम, राइट, एंड दीज आर यूजुअली carried out in basic media. This is the basic difference. Okay, ये acidic media और यहाँ पर basic media. Phenol functionality is ortho and para, and in case of resol, phenol functionality is ortho, meta and para. ठीक है, यहाँ पर ortho और para पर ही जो है फिनॉल का की जो फंक्शनलिटी होती है और यहाँ पर तीनों ही पोजीशन पर ऑर्थो, मेटा और पैरा पर जो है वो फिनॉल की फंक्शनलिटी रहती है. थर्ड इज़ द फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड इज़ 1:0.8, राइट, इन केस ऑफ नोवेलक, और इन केस ऑफ रिजॉल फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड इज़ 1:1.2 रेशियो. ओके, देन आता है कैन बी क्रॉस लिंक्ड. ये जो है क्रॉस लिंक्ड कर सकते हैं इनको, और ये क्या होता है ऑलरेडी क्रॉस लिंक्ड होती है, राइट. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ नोवेलक एंड रिसॉल.
राइट। और भी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। सॉल्युबल इन अल्कोहल, लोअर एस्टर्स, कीटोन्स एंड डाइल्यूट अल्कली। ये इन सब के अंदर सॉल्युबल होती हैं, अल्कोहल में, लोअर एस्टर्स में, कीटोन्स के अंदर एंड तनु अल्कली के अंदर। और ये नॉट सॉल्युबल आफ्टर कंप्लीट क्रॉस लिंकिंग। ये जो है कंप्लीट क्रॉस लिंकिंग के बाद ये सॉल्युबल नहीं होती हैं। ओके। एवरेज MW इज़ बिटवीन 600 to 1500, राइट। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इसके बीच में वेरी करता है। यहाँ पर वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर उपस्थित होता है, राइट। मेल्टिंग पॉइंट इज़ बिटवीन 100 डिग्री टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर डिग्रेडेशन स्टार्ट एट लेस देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स, और ये क्या होता है, थर्मोसेट पॉलीमर्स। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। ओके। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आती हैं केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर जब फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस्ट, देन वी गेट ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। यहाँ पर जो है हम देखते हैं ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलता है। कैटलिस्ट यहाँ पर हम काम में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन पाउडर फॉर्म। मीडियम होता है डिस्टिल वाटर। टेम्परेचर इज़ नियर अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हीट ऑफ रिएक्शन इज़ 180 कैलोरी पर ग्राम। तो दीज आर द रिएक्शन कंडीशंस। ओके। ये तो है आपका जो है केमिकल रिएक्शन, राइट। फिर आता है आपका रिसॉल्व। ये है हियर इज़ द रिएक्टेंट, और यहाँ पर हमको जो मिलता है ये क्या है, बनने वाला प्रोडक्ट बेकेलाइट होता है। और बेकेलाइट क्या है, ये आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशन है वो क्या होती है, ये टेम्परेचर, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल विल बी क्रॉस लिंक्ड ऑन हीटिंग टू अराउंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर होता है। ओके। तो ये यहाँ पर हमने इनकी केमिकल रिएक्शन शो कर रखी है, ठीक है। हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आती है दूसरी नोवेलक फॉर्मेशन। ये कैसे होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल की रिएक्शन जब फिनॉल के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे नोवेलक यानी लीनियर पॉलीमर मिलता है, रेजिन बनती है, और ये हमने इसको यहाँ पर रिएक्शन देकर शो कर रखा है। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या काम में लिया जाता है, द पॉलीमराइजेशन इज़ ब्रॉट टू कंप्लीटिंग यूजिंग एसिड कैटलिस्ट इज़ सच एज ऑक्सैलिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। टेम्परेचर कितना होता है, एट अ टेम्परेचर टू अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म्स मिथाइलिन ब्रिजेस। प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, medium is distilled water, and thermal stability both Risol and Novelec have high temperature stability up to 300 to 350 degree centigrade. So these are the reaction conditions, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन देकर दोनों का फॉर्मेशन बताया है कि किस तरह से जो है वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनते हैं। ओके। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आती हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कोरेसिव कोटिंग फॉर स्टोरेज टैंक्स, सेमी टैंक, ट्रेलर्स, रेल रोड, टैंक कार्स, फैंस, ब्लोअर्स एंड फिन ट्यूब कॉइल्स, ठीक है। यहाँ पर जो है इनकी कोरेसिव कोटिंग्स इनके द्वारा होती है। ओके। फिर आता है बाइंडर फॉर, इसमें क्या क्या काम में आते हैं, फ्रिक्शन पैड्स, ब्रेक पैड्स, ग्राइंडिंग व्हील्स, प्लेवुड एंड पार्टिकल बोर्ड्स। ओके। देन आता है वियर रेजिस्टेंस, गैस मीटर वॉल्व्स, पंप सील्स एंड कैस्टर व्हील्स। ओके। देन आता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड थर्मल परफॉर्मेंस,
brake, pistons, transmission parts, electrical motor, brush cards. Okay, then आता है electrical insulation, terminal strips, commutators and capacitors, cans and caps. या तो यहाँ पर इस चीज़ में इनका यूज़ होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स का. So these are the total application of phenol formaldehyde resins. Okay. Thank you very much, students.